یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے سے نکلی اور اپنے جیٹھ کے کمرے تک گئی۔ میرے جذبات پر قابو نہیں تھا اور میں سکون کی تلاش میں تھی۔ یہ میرا روز کا معمول تھا کہ جب میرے دل و دماغ میں کشمکش بہت بڑھ جاتی تو میں کہیں نہ کہیں نکل جاتی۔ اس رات بھی میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ پچھلے 5 سال سے وہ دبئی میں رہ رہے تھے اور ہم کبھی کبھار ہی کال پر بات کر پاتے تھے کیونکہ وہاں وہ مصروف رہتے تھے۔ وہ کچھ پریشانیوں کی وجہ سے وہاں گئے تھے۔ میری خواہشات میری برداشت سے باہر ہو چکی تھیں۔ میں اکثر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی، مگر تنہائی اور عدم توجہ کی وجہ سے یہ مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے جیٹھ کو مختلف طریقوں سے قریب لانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ میری باتوں پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ سال گزر گئے تھے اور میرے شوہر نے کبھی بھی میری جانب توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے خود پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار میں بھی انسان ہوں اور میں بھی محبت اور توجہ کی ضرورت محسوس کرتی ہوں۔ میں بس اپنی دھن میں مگن تھی اور اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مجھے بس اپنے دل کو تسلی دینے کی فکر تھی اور اس کے لیے میں اپنے جیٹھ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں اور جو کچھ کرنا چاہتی ہوں کر گزروں۔ میں نے ایک بار پھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے جواب دیا، میں ہوں مناہل۔ اس نے کہا، واپس چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازہ نہیں کھلا اور کوئی جواب بھی نہیں آیا۔ میں درخواست کرنے لگی کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں دیر تک اس کے دروازے پر کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی کہ وہ دروازہ کھولے اور میری مدد کرے۔ آخرکار اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے دیا۔ میں نے اندر جاتے ہی پوچھا، آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میری آنکھوں میں آنسو اور بے بسی تھی۔ میں جیسے اپنی کمزوریوں میں الجھ چکی تھی۔ میں نے ایسے لباس پہن رکھے تھے جو میری ذہنی کیفیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ میں بس چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ میری مدد کرے اور میرے دکھی دل کو سکون دے، مگر وہ کسی بھی قسم کی غلط حرکت کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس نے ایک بنیان پہن رکھی تھی اور وہ اپنے کمرے میں پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میرے جذبات بے قابو تھے، مگر میں سمجھ رہی تھی کہ یہ سب میرے اپنے خیالات تھے اور حقیقت میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری زندگی کسی طوفان کا شکار ہو چکی ہے اور میں منجھدار میں پھنسی ہوئی ہوں۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی غلط سوچ میں مبتلا تھی، اور تب میری آنکھیں کھل گئیں کہ میں غلط راستے پر چل رہی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کس گمراہی اور ناپسندیدہ عمل میں ملوث ہو چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید میں نے اس کے سبب اپنے اللہ تعالی کو ناراض کر دیا ہو۔ میں اپنے گناہوں اور غلطیوں کے بوجھ کے ساتھ اکیلی کھڑی تھی اور یہ جان کر بہت شرمندہ تھی کہ انجانے میں کتنی بڑی خطا کر بیٹھی ہوں۔ اس حقیقت کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا تھا اور اب ایسا لگتا تھا جیسے پانی سر سے گزرنے والا ہے۔ میں اپنے جیٹھ کے کمرے میں کھڑی تھی اور ایک بار پھر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس نے کہا کہ وہ میری ویڈیو بنا چکا ہے اور جلد ہی اسے وائرل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں اسے دوبارہ کوئی اشارہ دوں گی تو وہ یہ ویڈیو میرے شوہر کو دکھا دے گا اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس کے ان جملوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ میں کیا غلط کر چکی ہوں۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ مجھے معاف کر دے اور میرے شوہر کو یہ سب نہ بتائے، لیکن اس نے سختی سے کہا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور میرے شوہر کو دکھائے گا۔ اب مجھے اپنی خواہشات کی بجائے اپنے شوہر کی فکر ہونے لگی تھی کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میری زندگی کا کیا ہوگا۔ میں اپنے جیٹھ سے درخواست کرنے لگی، مگر اس نے مجھ پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا کہ میں اپنے شوہر سے محبت کا دعوی بھی کرتی ہوں اور اس کی پیٹھ پیچھے اس طرح کے کام بھی کر رہی ہوں۔ مجھے اس کے منع سے ایسی باتیں سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ میں اسے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، لیکن میرے غلط فیصلوں نے حالات کو کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔
मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरी ये गलती मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, और अब उसका असर वाज़ेह होने लगा था। उसने मुझे वो वीडियो दिखाई जिसमें मैं उससे नापसंदीदा बातें कर रही थी, और वो मेरी उन हरकतों को रिकॉर्ड कर चुका था। अब वो ये वीडियो मेरे शौहर को भेजने वाला था, और मेरी ज़िंदगी एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रही थी। मैं उसके कदमों में गिर कर अल्तजाएं करने लगी कि वो ऐसा न करे। जब मैं उसके कदमों में गिर कर मन्नतें करने लगी तो उसने अपनी एक अजीब सी शर्त रख दी, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि वो मेरे शौहर को वीडियो नहीं दिखाएगा, मगर इसके बदले मुझे उसकी एक बात माननी होगी। मैंने फ़ौरन अपना सिर हिलाया और कहा कि मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। जो वो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। इस पर उसने कहा कि उस घर के तमाम कागजात जो मेरे नाम पर हैं और मेरे शौहर ने मेरे नाम करवाए थे, वो मुझे लाकर दो। ये शर्त मेरे लिए बहुत बड़ी थी और इस बात को मानने में मुझे बहुत तरद्दुद हो रहा था, लेकिन जो हालात थे और जिस वजह से उसने ये शर्त रखी थी, वो मेरे लिए बात ही अजाब बन सकती थी। मैंने अपनी रजामंदी जाहिर की और कहा कि मैं कल सुबह बैंक से वो कागजात ला कर दे दूंगी, क्योंकि बैंक हमारे इलाके में ही वाक़ है। इसने कहा कि जब तक तुम कागजात लाकर नहीं देती, तब तक मैं ये वीडियो महफूज रखूंगा और तुम्हारे शौहर को नहीं दिखाऊंगा। इसकी बात सुनकर मुझे वक्ती तौर पर तसल्ली हुई और मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग आई। मैंने अपने कपड़े बदले और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। मेरे शौहर ने कहा था कि ये घर उन्होंने मेरे नाम कर दिया है और ये मेरी मना दिखाई का तहफ़ा था। अब मैं कैसे अपने शौहर का दिया हुआ यह तहफ़ा किसी और के हवाले कर सकती थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त था और मुझे उससे निकलने का कोई रास्ता निकालना था। मैं किसी भी तरह अपने शौहर तक ये वीडियो नहीं पहुंचने देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर का दिल टूटे और वो मुझे छोड़ दें, क्योंकि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। हाँ, जो ख्वाहिशात मेरे दिल में अभर रही थीं, वो महज वक्ती थीं और शैतान के डाले हुए वसवसे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने खुद को गलत कामों में मुब्तला कर लिया था और अल्लाह ताले की इबादत से दूर हो चुकी थी। मुझे एहसास नहीं था कि अल्लाह ताली से दूरी मुझे इस कदर गमराही में धकेल देगी। आज मैं उसी तबाही में गिरी हुई थी, लेकिन जब उस हालत से निकली तो मुझे समझ में आया कि मैं किस कदर गमराह और नापसंदीदा काम कर रही थी। अब मुझ में इतनी हिम्मत भी न रही थी कि अपने जेठ की आंखों में आंखें डाल सकूं, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा बड़े भाई की तरह थे। मेरे शौहर ने भी उन पर एतमाद करते हुए मुझे अकेला उनके साथ छोड़ा था, और मेरे जेठ ने कभी भी मुझे मेरे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो मेरी हर बात और हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे। मैंने जाने अनजाने में शैतान को अपने जहन पर गालिब आने दिया और ऐसे काम किए जिन पर मुझे अब पछतावा हो रहा था। मैं अपने बेड पर बैठी रोते हुए अल्लाह को याद कर रही थी और बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मुझे सुबह जल्दी उठना था ताकि बैंक से जाकर कागजात ले आ सकूं। वो कागजात घर में नहीं थे, क्योंकि चोरी के खदशे के बास मैंने उन्हें लाकर मैं रखवा दिया था। अब जब उनकी ज़रूरत पेश आ रही थी तो मैं खुद बैंक जाकर लाकर से निकालना चाहती थी। अगले रोज़ मुझे पता चला कि कल हफ्ता है और उसके बाद इतवार, और उन दोनों दिनों में तमाम बैंक बंद रहते हैं। ये जानकर मेरे दिमाग में मज़ीद खलबली मच गई। मैं नहीं जानती थी कि अब क्या होगा, और उसी परेशानी में घर वापस आ गई। मैं और मेरे शौहर एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। हमारी शादी पसंद की थी और शादी से पहले हम कई बार मिल चुके थे। मेरे शौहर का नाम खरम था। खरम और मैं यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और वो मुझसे 1 साल सीनियर थे। जब मेरी उनसे दोस्ती हुई, इस वक्त वो यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनके आखिरी सेमेस्टर चल रहे थे और मैं सेकंड लास्ट सेमेस्टर में थी। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई, और यही हाल उनका भी था। हम दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाज़ार में लगे एक बड़े शीशम के दरख्त के नीचे हुई थी। उस वक्त मैं कुछ दूसरे सीनियर लड़कों और लड़कियों के ग्रुप में खड़ी थी।
جب خرم سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے چھیڑ رہے تھے اور میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ جب خرم نے یہ دیکھا تو انہوں نے میری مدد کی اور اپنی ہم جماعت لڑکیوں اور لڑکوں کو مجھ سے دور رہنے کی تلقین کی۔ خرم نہایت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے اور ان کا جسم بھی خاصا متناسب اور توانا تھا۔ ان کے چہرے کی کشش سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ میں انہیں پہلی بار دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی مگر خاموش رہی۔ ان کا میرے لیے یوں کھڑا ہونا مجھے بہت اچھا لگا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اپنی کلاس میں چلی گئی۔ خرم کے کہنے پر ان کی کلاس فیلوز نے میرا پیچھا چھوڑ دیا اور دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے بریک ٹائم میں ان سے ملنے کا کہا۔ بریک ٹائم میں ہم دونوں کینٹین میں ملے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے گئی تھی اور انہوں نے مجھے دوستی کی پیشکش کر دی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوتا دیکھ کر میں تھوڑی گھبرا گئی اور ان سے کچھ وقت مانگ لیا۔ گھر آ کر میں نے اس بارے میں بہت سوچا اور اپنی دوستوں سے بھی بات کی۔ میری دوست نے بھی یہی کہا اور میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ مجھے ان کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ آخر کار میں نے ہاں کر دی۔ کچھ دن بعد ہمارے امتحانات شروع ہو گئے اور امتحانات کے بعد خرم سمیت تمام سینئرز یونیورسٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہمیں ملنے کے لیے یونیورسٹی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا اور یوں ہمارے تعلقات آگے بڑھنے لگے۔ اب وہ مجھے کال پر ہی ملاقات کے لیے بلا لیتے تھے اور میں اکثر یونیورسٹی سے 1 یا 2 لیکچر چھوڑ کر ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ یوں ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت گہری ہوتی گئی۔ جب میں آخری سال میں تھی تو میں نے خرم سے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیج دیں، کیونکہ میرے گھر والوں کو میری شادی کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ اس وقت خرم بے روزگار تھے اور ابھی تک انہوں نے رشتہ نہیں بھیجا تھا، اس لیے میں نے ان پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ میرے اصرار کے باعث انہوں نے اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر رشتہ لے کر بھیج دیا۔ میرے گھر والوں نے اس بات پر سخت تنقید کی اور مجھے کہا کہ تم ایک ایسے لڑکے سے محبت کرتی ہو جس کا ابھی کوئی مستقبل نہیں ہے، جو اب تک بے روزگار ہے اور اپنے والد کی جائیداد پر گزارا کر رہا ہے۔ انہیں خدشہ تھا کہ خرم کب تک اپنی فیملی کی ذمہ داریاں سنبھال پائیں گے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میری شادی خرم سے تب تک نہیں کریں گے جب تک وہ کسی اچھی ملازمت پر نہ لگ جائیں۔ یہ سن کر میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں میں خرم کو ہمیشہ کے لیے نہ کھو دوں۔ میں نے اس خدشے کا ذکر خرم سے کیا، جس پر انہوں نے اپنی پوری محنت لگا دی اور ہر جگہ انٹرویو دینے لگے۔ اللہ نے ان کی محنت کو قبول کیا اور انہیں ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی اور میں نے دوبارہ ان کے گھر والوں کو ہمارے گھر بلانے کا سوچا۔ اس وقت خرم ایک اچھی نوکری پر تھے اور ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میرے گھر والے بھی راضی ہو گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ بہت سکون سے گزرا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے اور جیسے ایک مثالی جوڑے کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر خرم کو ان کے دفتر کی جانب سے ترقی ملی اور وہ دبی چلے گئے۔ ان کے دبی جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں میرے ایک بڑے جیٹھ بھی رہتے تھے جو نہایت بااخلاق اور ذہین شخص تھے۔ وہ معاملات کی نزاکت کو سمجھتے تھے اور ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان سے میری جلد ہی اچھی بن گئی تھی۔ میں ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بھائیوں کی طرح جانتی تھی اور وہ بھی مجھے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتے تھے۔ خرم نے مجھے ان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جلدی ہی واپس آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ خرم نے میرا خیال رکھنے کی ذمہ داری احسن بھائی کو سونپ دی تھی۔ میں خرم کے جانے پر راضی نہیں تھی، لیکن ان کے کامیابی کے لیے یہ قدم ضروری تھا۔ چنانچہ وہ مجھے پاکستان میں چھوڑ کر بیرون ملک جا بسے۔ میں دن رات ان کی یاد میں اداس رہتی اور روتی۔ کچھ دن بعد انہوں نے کال کی اور کہا کہ وہ جلد ہی مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ میں اسی امید پر بیٹھ گئی۔ 5 سال گزر گئے اور میں ان کی یادوں میں جی رہی تھی۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت کم بات کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان کی بے رخی بڑھنے لگی۔ خرم کی یہ بے توجہی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
5 साल का अरसा मैंने उनसे वफादारी में गुजारा था। मैं अपने जेठ के साथ उस घर में रहती थी। मेरे जेठ की शादी नहीं हुई थी और एक बार होने के बाद उनकी बीवी से कुछ बन न सका और दोनों की तलाक हो गई। अब मेरे जेठ एहसन भाई बिल्कुल अकेले थे और वो अक्सर अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहते थे और अपने कमरे से बहुत कम बाहर निकलते थे। लेकिन जब भी निकलते वो मुझे घर की सारी खरीदारी भी कर देते थे और काम में मेरा हाथ भी बटा देते थे। न जाने में कुछ रोज़ से कैसी हो गई थी और मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। मुझे अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए गलत साइड का इंतखाब करना पड़ गया था। मैं खुद इस बात से बेखबर थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अपने तौर पर सब कुछ ठीक कर रही हूँ, लेकिन हकीकत में मुझे अपनी जिनसी तस्कीन की तलब थी और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने एक दिन फैश वीडियो देखी और फिर मेरे दिल में ना जाने किया आया कि मैं उठकर अपने जेठ यानी एहसन भाई के कमरे की तरफ चल दी। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें आवाज़ दी। ये तकरीबन रात के 12 बजे थे और उस वक्त वो मेरे दरवाजे के खटखटाने की वजह से परेशान हो गए थे। जल्द ही वो दरवाजे पर आ गए। उन्हें लगा कि मैं किसी परेशानी या मुश्किल में हूँ या ये समझकर आए कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये कहते हुए उन्होंने मुझे देखा और मैंने नहायत ही तंग और बारीक कपड़े पहने थे जिनसे मेरा जिस्म वाज़ेह तौर पर बाहर दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है। वो मेरी बात सुनकर और मेरे हलिये को देखकर एकदम से गड़बड़ा गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तो मैंने उन्हें बदी की दावत दी और कहा, मुझसे मज़ीद नहीं रहा जाता और अब मेरे पास खरम मौजूद नहीं। ऐसे में मेरे पास फ़कत आप ही हैं। मुझे आपकी ज़रूरत है और आप मुझे सुकून बख्शें। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कह रही थी, बस मुझे तो अपनी ख्वाहिशों का हसूल चाहिए था। उन्होंने मेरी तरफ नहायत अजीब नज़रों से देखा और कहा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हारे बड़े भाइयों की जगह हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं सुन पा रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले आई। इत्तेफाक से उसी रोज़ उनके लैपटॉप का कैमरा भी ऑन था और शायद वीडियो बन रही थी। उनके मुसलसल इनकार के बावजूद मैं उनके बहुत करीब हो गई थी और मैंने उनके साथ नाजिबा हरकतें करना शुरू कर दी थीं। मुझे नहीं मालूम था कि उनके लैपटॉप में वीडियो बन रही है और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस लैपटॉप में क़ैद हो रही थी। मैं उस शैतानियत में अंधी हो चुकी थी और इस अंधेपन में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गुनाह की तरफ मुकम्मल तौर पर माइल हो चुकी थी और शायद ये सब कुछ देखकर ऐसा भाई भी मुझे उस सब से निकालना चाहता था, मगर वह इस सब में बिल्कुल बेबस थे। मैं उन्हें मुसलसल बदी की तरफ रुजुए करने का कह रही थी और उनके लिए शायद यह बात काबिल कबूल न थी। अब जब भी मैं उनका दरवाज़ा खटखटाती तो वो ऐसे ही मुझे बाहर से धकेल देते और दरवाज़ा नहीं खोलते। रात के वक्त तो वो बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलते और दिन में अक्सर वो मेरे जागने से पहले ही घर से बाहर चले जाते। बहुत कम ही घर पर आते, लेकिन जब भी घर पर आते मुझे देखकर अपने कमरे में घुस जाते, जबकि मैं हमेशा ही उनकी ताक में लगी रहती। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। मुझे ना तो अपनी होश थी और न ही अपने आमाल का, न ही मुझे इस बात की फ़िक्र थी कि मैं अपना बना बनाया अमेज ख़राब कर रही हूँ। जितनी मेरी इज्जत यहाँ पर की जाती थी मैंने अपने ही हाथों सब तबाह कर लिया था। वो शायद किसी की इज्जत नहीं की जाती थी और आज मैं अपनी इज्जत खुद ही ख़राब करने लगी थी। मैं अपना इमेज खुद ही यहाँ लोगों के सामने ख़राब कर रही थी। लोगों से क्या, मुझे अपने ऐसे भाई के सामने खुद को शर्मिंदा करना अच्छा लग रहा था। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मेरी अपनी तस्कीन थी। यह एक गुनाह की लत थी जो मुझे लग चुकी थी। जैसे कहते हैं कि गुनाह का नशा पहले पहल तो बहुत होता है और नहायत हसीन लगता है, जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ हमें उसी एक गुनाह में मिलने लगती हैं। लेकिन जब वो गुनाह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी ख्वाहिशात हमारे दिमाग पर चढ़कर बोलने लगती हैं, तो वो उस नशे की इंतहा होती है। जब यह नशा उतरने लगता है तो फिर इंसान बाद में समझता है कि वो क्या से क्या बन गया था। इसके बाद ना तो इंसान किसी को मन्ना दिखाने के लायक रहता है, ना ही
खुद अपने आप से नज़रें मिलाने का हक रहता है। तब वह गुनाह के दलदल में ऐसा फंस चुका होता है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, और मैं भी ऐसी ही दलदल में फंस चुकी थी। अब जब मुझे होश आया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे निकलूं, मैं इस दलदल को कैसे छोड़ूं, और अगर उसे छोड़ भी दूं तो क्या होगा। तो यह मेरा माजी बनकर मेरे पीछे पीछे लगा रहेगा और मुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। लेकिन अभी वक्त नहीं गुजरा था और मुझे खुद को सुधारना था, मगर कैसे? अब मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। रास्ता था तो फकत यही कि अहसन भाई ने मुझे अपने घर के कागजात देना थे और फिर खुद को उस सारे मामले से बरी कर देना। और मैं यह काम जल्द से जल्द करना चाहती थी, लेकिन इसमें रकावट से रकावट आ रही थी। अब एक और रकावट आ चुकी थी कि 2 दिन बाद ही मैं लाकर से अपने घर के कागजात निकाल सकती थी। चनांचा मैंने 2 दिन का वक्त दिया और सोचने लगी कि अब क्या करूं। मैंने अहसन भाई से बात की और उन्होंने भी कहा कि चलो 2 दिन की बात है और 2 दिन बाद मेरे पास इस घर के कागजात आने चाहिए। मैं जानती थी कि अहसन भाई और खरम दोनों एक दूसरे के सगे भाई नहीं थे, दोनों की माई अलग अलग थीं और उन दोनों के बाप एक ही थे। अहसन भाई बड़े होने के साथ साथ बरदबार और नेक इंसान थे, जो हमेशा ही खरम की रहनुमाई करते रहे थे और उन्हें अच्छे आइडियाज़ देते रहे थे। आज उन्हें मालूम नहीं क्यों उस घर के कागजात चाहिए थे। मैं ये जानती थी कि उन दोनों के दरमियान काफ़ी बड़ी बहस हो चुकी थी और वह खरम से उस घर के कागजात चाहते थे, जबकि खरम उन कागजात को देना नहीं चाहता था। इसके मुताबिक ये घर उसकी प्रॉपर्टी थी, जबकि अहसन भाई कहते थे कि यह बाबा का घर है और हम दोनों में यकसान तकसीम होना चाहिए। मैंने उन दोनों की यही तकरार कई बार सुन चुकी थी। अब जब मुझे ये लग रहा था कि मेरी वीडियो वो खरम को दिखा देंगे, तो उन्होंने मुझसे इस घर के कागजात मांगे थे। वो जानते थे कि ये कागजात मेरे पास हैं और मेरे नाम पर हैं, तो उन्होंने मुझसे उस घर के कागजात उसी लिए मांग लिए थे और मैं उनको देने के लिए तैयार भी हो गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वीडियो मेरे शोहर तक पहुँचे और वो मुझे छोड़ दें। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी मोहब्बत में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। न ही मैं उनकी बेरखी बर्दाश्त कर सकती थी और न ही उनकी जदाई। उनकी जदाई का सोचकर तो जैसे मेरा दिल हिलने लगता था और मेरी सांसें अखड़ने लगती थीं। बस यही वजह थी कि मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। अब अहसन भाई ने जिस अंदाज से मुझे इस घर के पेपर देने को कहा था, मुझे यही लग रहा था कि वो अब ये घर अपने नाम करवाना चाहते हैं या फिर उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करना चाहते हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे नहीं जानता था कि आखिर अहसन भाई के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं समझ नहीं पा रही थी, बस अपने गुनाह को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब जब भी मैं अहसन भाई को अपने सामने देखती थी तो मुझे शर्म महसूस होने लगती थी और मुझे लगता था जैसे मैं ज़मीन में धंसती जा रही हूँ। मैं उन्हें देखकर अपने कमरे में छिप जाया करती थी। अब मुझ पर वो वक्त आन पड़ा था जो अहसन भाई ने मेरे लिए लाया था। अब अहसन भाई अपनी चाल से मुझे इस तरह बचा चुके थे कि मैं मुकम्मल तौर पर उनके जाल में फंस चुकी थी। मुझे पता चल चुका था कि अहसन भाई क्या चाहते हैं और मैं अब इस घर के कागजात देने के अलावा और क्या कर सकती थी। चनांचा मैंने उनको कागजात देने का फ़ैसला कर लिया। इस हवाले से मैं खरम से भी कोई बात नहीं करना चाहती थी। इस रोज़ में अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी और मेरे दिल पर बहुत सा बोझ था। मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्त के साथ जाऊंगी, थोड़ा एंजॉय करूंगी और अपनी दोस्त को अपनी तमाम हालात से आगाह करूंगी। इस तरह थोड़ा सा माहौल तब्दील होगा तो यकीना मैं पुरस्कुन भी हो जाऊंगी और इस टेंशन से ज़रा दूर भी हो जाऊंगी। मैं ये सोचकर अपने दोस्त को मुलाकात के लिए बुला चुकी थी। अपने दोस्त के आते ही मैं उसके साथ चली गई थी। यह शाम का वक्त था और मैं रात को तकरीबन 10 बजे तक वापस घर लौटी। वहाँ पर मैंने अपनी दोस्त को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी दोस्त मुझे यही मशवरा दे रही थी कि जैसा अहसन भाई कह रहे हैं तुम ऐसा कर लो,
यानी अपने घर के तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दो और अपनी रहाई मंजूर करवा लो। ये अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि अहसन भाई की गाड़ी घर में खड़ी है। मैंने अकताकर गाड़ी की तरफ देखा और सोचा कि अब फिर अहसन भाई अंदर ड्राइंग रूम में मौजूद होंगे और मुझे उनसे नज़रें मिलानी पड़ेंगी। मैं अपने गनाह पर शर्मिंदा थी और उस शर्मिंदगी की वजह से मैं उनका सामना नहीं कर सकती थी। मैंने अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत और हौसला जमा किया और अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने ही टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम दिखाई देते थे। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मुझे हल्के हल्के खुशगपियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर अहसन भाई के साथ और कौन मौजूद है, और यही तजस्सुस मेरे दिल में बढ़ने लगा। मैं अहसन भाई से नज़र तो नहीं मिला सकती थी, लेकिन फिर भी मैं इस तरफ जाने लगी कि शायद कोई मेहमान हो और मुझे उनसे मिलना चाहिए। चनांचा मैंने ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंची, मैंने देखा कि वहां अहसन भाई के साथ कोई और भी मौजूद है। यह भी कोई मर्द था, लेकिन मैं फ़ौरन समझ नहीं पाई। चंद लम्हों बाद मैं जैसे एक करंट खाकर पीछे हटी, क्योंकि अहसन भाई के साथ गुपशप करने वाला कोई और नहीं बल्कि खरम ही थे, और वो इस कदर बदल चुके थे कि पहले नज़र में मैं उन्हें पहचान न सकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उन्हें पहचान चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे बताए बगैर इतनी जल्दी कैसे गए। उनका तो अभी 1 साल तक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, यानी कि वो तो 6 साल मुकम्मल करके बाद में आने वाले थे। मैं उन्हें देखकर यही सोच रही थी कि उन दोनों की नज़र जल्द ही मुझ पर पड़ गई। वो दोनों मेरी तरफ मतोजा हो गए। अहसन भाई मुझे देखकर मुस्कराने लगे और कहा, अंदर आ जाओ मनाहिल, देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। मैं उनको शाकी नज़रों से देख रही थी। इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे मुमकिन था? मुझे एकदम से डर लगने लगा कि जैसे अहसन भाई मेरी वीडियो उन्हें दिखा चुके हैं। मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ अभी उस वीडियो और अहसन भाई की तरफ ही था। मैंने अभी तक खरम को उनकी तरफ कर भी न देखा था, और उनकी कहने पर वो मेरी तरफ मतोजा हुए। खरम उठकर मेरी तरफ आने लगे। उन्होंने जल्दी से आकर मुझे बाजुओं से पकड़ लिया और कहा, अब मज़ीद मुझे तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं चाहकर भी अब खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता था। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अब तुम्हें वापस नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें वापस लेने ज़रूर आऊँगा, तो आज मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। चलो तुम आ जाओ और एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ रोज़ बाद हम दोनों वापस दबी चले जाएंगे। इस बार मैं अकेला नहीं होऊंगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ होगी। इनकी आंखों में बेतहाशा मोहब्बत दिखाई दे रही थी, जबकि मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रही थी, न ही मैं उनके चेहरे की तरफ देख सकती थी। मैं आज खुद को एक नहायत ही गरी हुई इंसान समझ रही थी, जिसने इतने मुखल्लिस इंसान के होने के बावजूद दूसरों को अपने साथ फहश गलतियां करने पर मजबूर किया था। लेकिन मुझे अब ये डर था कि कहीं अहसन खरम को मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता ना दे, वो उन्हें मेरे बारे में हकीकत ना बता दें, उन्हें मेरी वीडियोज़ ना दिखा दें। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखने लगी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनके मुस्कुराने की वजह से समझ नहीं आ रही थी, और मैं जो इतने सालों बाद अपने शौहर खरम से मिली थी, मुझे उनसे गले मिलने का शौक़ पैदा हुआ। मैंने जल्दी से अपने आप को उनके गले लगते महसूस किया, और एक ठंडक थी जो मेरे सीने में पहुंच चुकी थी। मैं खामोशी से अपना सिर उनके सीने पर टिका चुकी थी। उसके बाद हम सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया, और खाना खाने के दौरान भी मैं अहसन भाई की तरफ नहीं देख सकती थी। वो हमारे साथ काफ़ी दोस्ताना बातें कर रहे थे और मुझसे सवालात जवाब भी कर रहे थे, जैसे कि पहले क्या करते थे। मुझे उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर वो बिल्कुल ठीक हैं और ऐसा कुछ नहीं चाहते और मेरी हकीकत भी खरम के सामने नहीं लाना चाहते, तो फिर आखिर क्या वजह है कि उन्होंने घर के कागजात मांगे थे और अब खरम के साथ मिलकर खुशगुपियाँ लगा रहे थे। अब खरम के आने के बाद उन्होंने दोबारा मुझसे घर के बारे में भी कोई बात ना की थी। मैं यही सोचे जा रही थी, और ये सोचते सोचते मुझे तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ते बाद हम दोनों की फ़्लाइट थी और मेरे सारे कागजात जमा हो चुके थे।
मेरा वीज़ा भी आ चुका था और हम दोनों दुबई जाने के लिए रखसत सफ़र बनने वाले थे। हम दोनों एक साथ मिलकर अपनी पैकिंग कर रहे थे। इस एक हफ्ते के दौरान मैंने कभी भी हसन भाई को खरम से किसी भी किस्म की लड़ाई करते नहीं देखा था। न ही मैंने उन दोनों को कभी लड़ते देखा और न ही मैंने कभी हसन भाई को अपनी वीडियोस के बारे में कोई बात करते सुना। उन्होंने ना तो इस बारे में कोई बात की थी और न ही मुझसे। मैं यह बात समझने से कासिर थी कि आखिर ऐसा किया है कि हसन भाई मुझसे दोबारा घर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, जबकि ये जानते हैं कि आज मेरी फ्लाइट है और मैं जा रही हूँ। चनांचा मैंने अपने अंदर बहुत सी हिम्मत जमा की और हसन भाई से बात करने का सोचा। उन्होंने फ़ौरन ही मुझसे बात करने के लिए हामी भर ली। मैंने उनसे कहा, हसन भाई, आपने मुझसे दोबारा घर के कागजात के बारे में ना ही बात की और न ही मुझे बलीक मेल करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, देखो मनहल, मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से बहन मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इंसान शैतान के बहकावे में आकर सीधे रास्ते से भटक जाता है। भटके हुए इंसान को वापस लाने के लिए उसके अपने ही काम आते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम जानती थीं कि मेरे और खरम के दरमियान यही घर का तनाज़ा चल रहा है, लेकिन मैं उस तनाज़ा को भूल चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि ये घर हम दोनों का है। अगर उन्होंने तुम्हारे नाम कर दिया है तो क्या हुआ? मुझे उस घर से तो नहीं निकाला। मैं तो एक बड़े फ़र्द की मानंद यहाँ पर मौजूद हूँ। तुम लोगों ने मुझे कभी किसी चीज़ का ताना नहीं दिया और चूँकि मैं बड़ा हूँ तो बड़े होने के नाते मुझे तुम लोगों को समझाना और गाइड करना अपना फ़र्ज़ लगता है। इसीलिए मैंने तुम्हें घर के कागजात की तरफ लगा दिया। उन्होंने मज़ीद कहा, और तुम्हारे शोहर को मैंने इस बात पर राज़ी कर लिया कि तुम अब मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और उसके बग़ैर जी नहीं पा रही। तुम उसे याद करती हो और रोती रहती हो। जब मैंने तुम्हारे रोने की बात की तो उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें संभाल लेगा, लेकिन मैंने उससे ज़िद की और कहा कि अब बहुत हो चुका। तुम यहाँ आओ और अपनी बेगम को अपने साथ लेकर जाओ। और मैं कुछ रोज़ तक वैसे भी नेपाल की तरफ निकल रहा हूँ। मेरा ट्रांसफ़र नेपाल हो गया है और मुझे वहाँ जाना होगा। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। तुम गलत रास्ते पर जा रही थीं, उसी वजह से मैंने तुम्हारा ध्यान भटकाकर तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की, और साथ ही साथ मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारे पास भी ले आया। उनकी यह बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने सच्चे दिल से मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ों का हमेशा यही वतीरा रहा है कि वो छोटों को उनकी गलतियों पर सज़ाएं नहीं देते, बल्कि उन्हें समझा बुझा देते हैं और सीधी राह पर ले आते हैं। यह कहकर वो मेरे सिर पर हाथ रखते हुए वापस मुड़ गए और मैं खुशी से उन्हें देखती रही। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई और खुशी खुशी अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी करने लगी। मैं अब समझ चुकी थी कि इंसान चाहे जितना भी पाक साफ हो जाए, इंसान किसी ना किसी तरीके से शैतान के जाल में फंस जाता है। लेकिन ऐसे जाल में फंसने के बावजूद भी अहल ईमान का यही शेवा होना चाहिए कि वो कभी भी शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दें और न ही ऐसा कुछ करने की सोचें जो मैं कर चुकी थी। मेरे पास तो हसन भाई जैसे बड़े बुजुर्ग मौजूद थे जो मेरी नफ्सियात को समझ चुके थे और मुझे राह रासत पर ले आए थे, लेकिन हर किसी के पास ऐसे बुजुर्ग मौजूद नहीं होते। अब मैं अपने शोहर के साथ दबी की तरफ रखसत सफ़र बन चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे दिल से मुखलस थे। मैं खुदा का शुक्र अदा करती रही कि मेरे शोहर को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला और अब हम दोनों की ज़िंदगी एक नए मोड़ से शुरू होने वाली थी। मुझे अपनी नई ज़िंदगी का शिद्दत से इंतज़ार था। जब हम दबी पहुँचे तो मुझे अपने नए माहौल के बारे में एक मुख्तलिफ एहसास हुआ। शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें और जद्द पसंदी मेरे लिए नए थे। मेरे शोहर खरम ने मुझे शहर की सैर कराने का वादा किया था और मुझे उम्मीद थी कि ये सफ़र हमारे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। हमने अपने दिनों की शुरुआत नए मकामात की दरियाफ़त से की। खरम ने मुझे मुख्तलिफ़ मशहूर मकामात जैसे कि बुर्ज खलीफा और दुबही माल की सैर करवाई। इन सब में मुझे एक नई ज़िंदगी की खुशबू महसूस हो रही थी। हर नए मंज़र में एक खुशी और उम्मीद की लहर थी
जो मेरे दिल को पुरामीद करती थी। दबी में गुजारे गए दिनों में मैंने अपनी मसरूफियात भी मुनज़्ज़म कीं। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करूंगी, इसलिए मैंने मकामी कम्युनिटी सेंटर में कुछ सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वहाँ पर मैंने नई दोस्तियाँ बनाईं और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोगों के साथ बातचीत का मौका मिला। खरम और मेरे दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर होने लगे। वो मेरी हर बात को गौर से सुनते और मुझे सपोर्ट करते थे। मैंने महसूस किया कि वो मेरी खुशियों का ख्याल रखते हैं और ये बात मेरे दिल को सुकून देती थी। लेकिन इस सब के दरमियान में कभी कभार अपने माजी की यादों में खो जाती थी। मैं सोचती कि क्या मैंने वाकई अपने गुनाहों का कफ़ारा चुकाया है। हसन भाई की बातें कभी कभी मेरी जहन में आते और मैं उनके मशवरों की कदर करने लगी। मैं जानती थी कि ज़िंदगी के कुछ सबक हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें उनसे बचने की। एक शाम खरम ने मुझे एक ख़ास डिनर के लिए बुलाया। इस मौका पर उन्होंने मुझे बताने का फ़ैसला किया कि वो अपने काम में बेहतरी के लिए मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही अपनी ज़िंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियां देखेंगे। उनकी बातें मेरे दिल को खुश कर गईं और मैंने सोचा कि ये हमारे नए सफ़र का आगाज़ है। उसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से समझने और उसे अपनाने की कोशिश की। मेरी ये नई ज़िंदगी मेरी माजी की गलतियों का अज़ाला करने का एक मौका थी और मैंने उस मौका को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने का इरादा किया। एक दिन जब मैंने अपने शोहर खरम के साथ शाम का खाना तैयार किया, मुझे अचानक एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। ये कॉल हसन भाई की थी। उनकी आवाज़ में एक बेचैनी थी जिसने मुझे फ़ौरन परेशान कर दिया। मनाहिल, मैं तुमसे कुछ अहम बात करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कुछ वक्त मिल सकता है? उन्होंने कहा। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मैंने फ़ौरन खरम की तरफ देखा जो टेलीविज़न देखने में मसरूफ़ थे। मैंने उनसे ये कहने का फ़ैसला किया कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मैं बाहर जा रही हूँ। जब मैंने हसन भाई से मुलाकात की तो उन्होंने मुझे एक हैरानकुन खबर दी। मनाहिल, खरम का माजी बहुत पेचीदा है। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये नहीं मालूम होगा, लेकिन वो कभी एक ऐसे मामले में शामिल थे जिसने उन्हें मुश्किलात में डाल दिया था। मेरी आंखें हैरत से खुली रह गईं। क्या आप क्या कह रहे हैं? खरम ऐसा नहीं कर सकता, वो हमेशा से अच्छा इंसान है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने खुद उसकी कुछ पुरानी वीडियोस देखी हैं जिनमें वो एक और लड़की के साथ नजर आता है। वो लड़की खरम की पुरानी मोहब्बत थी और वो अब दबी में वापस आई है। ये सुनकर मेरी दुनिया जैसे पलट गई। क्या खरम ने मुझसे कुछ छिपाया था? क्या ये सच था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की थी? मेरे दिल में बेचैनी और खौफ ने सर उठाया। मैंने अपने एहसासात को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे खरम से बात करनी होगी। जब मैं घर वापस आई तो खरम मुझे खुश देखकर मुस्कराया, लेकिन मेरी आंखों में एक सवाल था जो मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। खरम, क्या तुमने मुझसे कुछ छिपाया है? मैंने जरात से पूछा। उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मनाहल, मैं तुमसे हर बात शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें क्या जवाब दूंगा। क्या तुम्हारी कोई पुरानी मोहब्बत है? मैंने उससे सवाल किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। खरम ने चंद लम्हों के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर उसने गहराई से सांस ली और कहा, हाँ, एक लड़की थी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है। मैंने उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। उसकी बातें मेरी तौक़ुआत से ज़्यादा सरीह थीं। मैं जानना चाहती थी कि वो मेरी तरह इस माजी से कितना मुतासिर है। वो लड़की कौन है? क्या वो अब भी तुम्हारे साथ है? मैंने आगे बढ़कर सवाल किया। नहीं, वो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोबारा वापस आ रही है। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और ये तुम्हारे साथ मेरी मौजूदा ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है। खरम ने अपनी आंखें बंद कर लें, जैसे कि वो माजी की यादों में खो गया हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो खरम। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा माजी हमें अलग करे। मनाहल, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। मैंने तुम्हें एक नए सफ़र की तरह लिया था, लेकिन अब मुझे अपने माजी का सामना करना होगा। ये सुनकर मुझे लगा जैसे दुनिया मेरे पैरों तिले से खुसक गई हो। मैंने अपने आप को काबू में रखने की कोशिश की,
لیکن میرا دل ٹوٹ گیا۔ اب مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ میری نئی زندگی میں محبت کی کہانی اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی تھی۔ کیا میں اس نئی حقیقت کا سامنا کر سکوں گی، یا میرا ماضی مجھے ہمیشہ کے لیے اس کی گہرائی میں کھینچ لے جائے گا؟